Second form of Rawls law means the first form was when the solute and solvent both are volatile. Now it is that solute is non-volatile but solvent is volatile. You're having two situations over here. This is vapor pressure of solvent. Container both are same. The amount of liquid taken, that is also same. But the first case having pure solvent and the second case having solution. So we should say over here that the first case it is pure solvent. So vapor pressure here will be because of pure solvent. And here if we see, this is solution, but solute is non-volatile, and hence the vapor pressure which is of solution over here is only because of the solvent present in this solution. There is solute who is non-volatile. And if we see the surface area, if we see the surface, अगर 10 मोल टोटल सरफेस पर हैं तो 4 मोल उसमें से सल्यूट के हैं और 6 सॉल्वेंट के हैं, पर वो जो 4 मोल सल्यूट के हैं वो नॉन वॉलेटाइल हैं, इसलिए वो सॉल्वेंट को जाने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास प्योर सॉल्वेंट है, उस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उस सल्यूशन से ज़्यादा होगा, जबकि उस सल्यूशन में भी प्रेशर उस सॉल्वेंट की ही वजह से है. अगर हम ध्यान दें यहाँ तो हमें ये कहना चाहिए कि ये जो पीएस है ये भी सो वेपर प्रेशर हमने बात की. व्हेन द सल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल, द वेपर प्रेशर ऑफ द सल्यूशन इज बिकॉज ऑफ द सॉल्वेंट प्रेजेंट इन दैट सल्यूशन and is less than the vapor pressure of a pure solvent. Less than the vapor pressure of pure solvent. Yes or no? It means when the two components are there but one is non-volatile, the vapor pressure contribution will be only because of one component, and this is called Babow's law. Second form of Rawls law is called Babow's law, according to which when the solute is non-volatile, the vapor pressure is because of the solvent present in that solution and will be less than the vapor pressure of pure solvent. Am I right? It means, जरा ध्यान दें यहाँ, अगर आप देखें तो जितना इसके अंदर ये रेड मतलब सल्यूट नॉन वॉलेटाइल होगा उतना सॉल्वेंट कम हो जाएगा, और अगर उतना सॉल्वेंट कम हुआ तो सॉल्वेंट का कंट्रीब्यूशन वेपर प्रेशर के लिए घट जाएगा. तो मैं यहां लिख रहा हूं XB इज मोल फ्रैक्शन ऑफ, यस, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट. Non volatile solute, mole fraction of non volatile solute, and this XB will be equal to NB upon, yes, Na plus NB. What is NB? NB is moles of solute, or we should say NB is WB by MB upon WB by MB plus WA by MA.
Yes or no? Is it okay? It means XA will be 1 minus XB. अगर हम यहां से देखें तो हमें यह लग रहा है कि जितना आप XB को डालोगे उतना PS कम हो जाएगा और उतना P0 माइनस PS डिफरेंस बढ़ जाएगा. सो वी आर राइटिंग हियर दैट PS, which is vapor pressure of solution, is inversely proportional to mole fraction of the solvent. Solvent or solute, inversely proportional to mole fraction of the non-volatile solute. Inversely proportional to mole fraction of non-volatile solute. It means जैसे जैसे XB बढ़ता रहेगा मुझे कहना चाहिए PS घटता रहेगा और P0 माइनस PS बढ़ता रहेगा. और अगर हम इसको रिलेट करें प्योर सॉल्वेंट के साथ, दैट इज P0 माइनस PS, if we relate it with P0 pure solvent, it will be equal to XB. का मतलब क्या हुआ कि जितना XB ज्यादा होगा, मीन जितने नॉन वॉलेटाइल सल्यूट के मोल ज्यादा होंगे, PS उतना कम होगा, P0 माइनस PS उतना ज्यादा होगा. Yes or no? It means from here we should say that XB will be NB upon NA plus NB. Yes or no? Means thereby कि अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 5% हुई का मतलब हुआ कि वो सल्यूट इग्नोर करने लायक नहीं है. सल्यूट कौन है? NB. इसका मतलब आपको इस वेपर प्रेशर को कंपैरिजन करने के लिए जिसको हमें क्या कहना चाहिए इज दैट दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. क्योंकि आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हो? सॉल्वेंट के साथ कर रहे हो कंपेयर के नहीं. तो सॉल्वेंट के रिलेटिवली हम उसको कंपेयर कर रहे हैं. सो वी शुड से दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर and is equal to NB. What will be NB equal to? NB will be equal to WB by MB upon WA plus by MA plus WA by MA plus WB by MB. Yes or no? इसका मतलब हुआ कि अगर आपको सल्यूट का मोलर मास निकालना है तो आपको इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. यस और नो? क्योंकि आप उस सल्यूट को इग्नोर कर नहीं सकते. इट मीन्स व्हेन द कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन 5%, the formula you will be using is this formula. का मतलब हुआ ये फॉर्मूला तब लगेगा when solution is concentrated solution and you cannot ignore the solute. Am I right? आप बोलो अगर ये डाइल्यूट होता, वेरी डाइल्यूट होता, if the concentration would have been less than 5%, का मतलब कैसा सोल्यूशन है? वेरी डाइल्यूट है.
और अगर वो वेरी डाइल्यूट होता तो आप सल्यूट को इग्नोर कर दो। सो अब आपने क्या कर दिया, ये तो हो गया व्हेन द सल्यूट इज कंसंट्रेटेड, बट व्हेन द सल्यूट विल बी लेस देन 5% का मतलब हुआ द सल्यूट इज कैसा सॉल्यूशन है, सल्यूट इज लेस इन अमाउंट। इट मींस P naught minus PS upon P naught, which was equal to NB upon NA plus NB. So now we will be ignoring this NB in the denominator, and there will be only NA NB हमने हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि solution is very dilute। इससे आपको क्या फायदा हुआ? इससे आपको ये फायदा हुआ कि जो कैलकुलेशन पहले बहुत मुश्किल हो रही थी वही कैलकुलेशन अब आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि ये कौन है, इज WB/MB। यस नो? WB/MB डिवाइडेड बाय WA/MA। अब देखो आपकी कैलकुलेशन पिछले के कंपैरेटिवली आधी हो गई कि नहीं हुई? इसका मतलब हुआ कि आपने क्या किया, दिस मीन्स solution is very dilute. So NB in the denominator is almost 0. Solution is very dilute. तो इस केस में NB in a denominator is 0. पर इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ? बताओ कि प्रॉब्लम क्या हुआ? इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये हुआ कि आपको उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी कि उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, क्या 5% से नीचे है, क्या 5% से ऊपर है। और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालने के लिए आपको सॉल्यूट का मास पता होना चाहिए, सॉल्यूट का मास पता होना चाहिए, सॉल्यूशन का मास पता होना चाहिए। जितना टाइम आप उसके लिए लगाओगे, आप क्यों नहीं उतने में अप्रॉक्सीमेट आंसर यहीं से निकाल देते? का मतलब ये हुआ कि इस बात को ख़त्म करना होगा। किस बात को? कि भाई 5% है कि 5% से ज़्यादा है। पर मैं कॉम्पिटिटिव में आपको ये कहूँगा कि आप कॉम्पिटिटिव में हमेशा इस फॉर्मूले को यूज़ करें। इतना क्लोज आंसर्स नहीं होते हैं, क्योंकि इसको यूज़ करोगे तो बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस हो जाएंगी। अब क्या हुआ, हम ये कहेंगे कि भाई इसके एप्लीकेशन क्या है, क्यों आप ये सब कुछ कर रहे हो? तो हमने कह दिया कि भाई अगर आपने सल्यूट का मोलर मास निकालना है तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। तो सॉल्यूट का मोलर मास MB आप इधर ले आइए तो आपके पास वेपर प्रेशर, सो लिख लीजिए वहाँ से MB क्या आ रहा होगा। तो उसने कहा कि इसका फ़ायदा क्या है? हमने कहा कि इसका फ़ायदा ये है कि आपने अगर किसी सल्यूट का मोलर मास निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। सो MB इज इक्वल टू कितना है? MB इज WB, यस नो? WB इंटू MA, yes no, upon WA into P naught minus PS upon P naught। तो अगर आपको बाकी सारी चीज़ें दी हैं तो आप उस सल्यूट का मोलर मास यहाँ से निकाल सकते हो। पर प्रॉब्लम यही रहेगी कि कैलकुलेशंस बहुत हैं।
इस पर सुधार करने के लिए हमने कुछ किया कि ग्रेटर देन 5% है तो पहला फॉर्मूला लगा दिया, लेस देन 5% है तो दूसरा फॉर्मूला लगा दिया। अब प्रॉब्लम ये रही कि कौन निकालता रहे कि परसेंटेज कितनी है, इसलिए हमने जो अभी इक्वेशन लिखी सो जो हम अब लिख रहे हैं, दिस इज फॉर एनी कंसंट्रेशन, दिस इज फॉर एनी कंसंट्रेशन। आपको नहीं निकालने की जरूरत कि भाई 5% से कम है कि ज्यादा है, इसलिए हमारे पास फॉर एनी कंसंट्रेशन हम क्या करने वाले हैं इस उसको लिखिए पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, यही थी इक्वेशन, इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। हम चाहते हैं कि इसको किसी भी कंसंट्रेशन के लिए मॉडिफाई कर दिया जाए। हमने कहा देखिए किसी के लिए भी मॉडिफाई करने के लिए आप क्या करें, इस इक्वेशन को उल्टा कर दें। आपने जब इस इक्वेशन को उल्टा किया तो आपके पास आ गया पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस, yes or no, will be equal to n a plus n b upon n b, yes or no। अगर आपने इस इक्वेशन को देख लिया तो आप यहां आराम से लिख सकते हो, क्या आप लिख सकते हो कि पी नॉट माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस will be equal to I should say 1 minus n, yes, n a अपॉन एन बी। बोलो जी 1 माइनस या 1 प्लस? मेरा आया प्लस, तुम्हारा माइनस आ रहा है शायद। सो आई शुड से दिस इज दिस। बोलो जी। अब आप इस 1 को इस साइड ले आइए तो आपको पता लग जाएगा कि वहां क्या हो रहा है। जब आप इसको इस साइड ले आओगे तो आपके पास आ जाएगा पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस, यस नो, माइनस 1 is equal to n a upon n b, is equal to n a upon n b. Am I right? So you multiply this with minus 1, you will be getting p naught minus p naught plus ps divided by, yes, divided by p naught minus ps, yes or no, is equal to n a upon n b। जी, अगर आप इस बात को देख पा रहे हो, सो p नॉट टू p नॉट कैंसल्स, yes or no, invert that equation and you will be getting p naught minus ps divided by ps, yes or no, is equal to nb upon na। से आपको समझना चाहिए कि आपने उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई तो कर दिया, पर एक लिमिटेशन हो गई
कि ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं है। प्योर के साथ कंपेयर कर रहे हो क्या आप? इसका मतलब हुआ कि भाई ये जो फॉर्मूला है ये आपने सिंप्लीफाई जरूर कर दिया, ठीक है, पर आप इस फॉर्मूले से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं निकाल पाओगे, और कुछ आपने निकालना, निकालते रहिए आप। तो आपने वो कंडीशन हटा दी कि 5% से कम है या 5% से ज्यादा है, और सीधा आप पहुंच गए यहां कि भाई कोई कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। यहां भी तो वही आ जाएगा, WB/MB डिवाइडेड बाय WA/MA निकल जाएगा। इसका मतलब साफ हो गया कि इस फॉर्मूले के करने से जो हम परसेंटेज की कंडीशन लगा रहे थे वो परसेंटेज की कंडीशन अब नहीं लगेगी। क्लियर हो गया? सो दिस इज फॉर एनी कंसंट्रेशन। Now we having the most important topic, and that is what is colligative property. आप ध्यान से सुने और यहां सारी कैलकुलेशंस हैं कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो अमाउंट पर डिपेंड करती हो, अमाउंट गिवन चेंज होगा तो क्या चेंज हो जाएगा? मोल चेंज हो जाएगा। सो colligative property are those properties of the solution which only depends upon the number of moles, which depend upon the number of moles, means number of particles. Yes or no? It means we should say any quantity, any solution property which will depend upon the number of mole. Number मीन्स ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो क्वांटिटेटिव हो, क्वालिटेटिव नहीं। अगर मैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में डिस्टिंग्विश करूं तो मैं आपको बता दूं कि आपने किसी क्लास में पढ़ा होगा कि 2 लोग एक काम को 20 दिन में करते हैं, 4 लोग उसी काम को कितने दिन में करेंगे? और आपका आंसर आ गया 10 दिन। बिल्कुल, अगर हम में दिमाग ना हो तो हम एकदम आंसर 10 दिन ही देंगे। समझ में आ गई बात? तो जो कह रहा है कि नहीं है तो फिर उससे पूछ लेते, आप क्या देते इसका आंसर? यही क्वेश्चन मुझसे भी क्लास में मेरे टीचर ने पूछा तो मैंने कहा कैन नॉट से एग्जैक्टली। कहते क्या बात, नहीं बोल सकते? हाउ कैन वी से? आप ऐसे करिए कि मान लो, तब बात हो सकती है। ऐसे कैसे हो सकता है कि 2 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं तो 4 आदमी 5 दिन में करेंगे? आपको यह एज्यूम करना होगा कि बाद के 2 भी उतना ही काम करते हैं जितने पहले 2 करते थे। का मतलब अगर आप उन लोगों की क्वालिटी कंसीडर करोगे तो हो सकता है 4 लोग वो काम 2 ही दिन में खत्म कर दे, और हो यह भी सकता है कि 4 लोग उस काम को 20 दिन में कर दें, क्योंकि आप ये क्वालिटी ले रहे हो कि क्या आप जो बाद के 2 हैं पहले 2 से ज्यादा धुरंधर हैं या बाद के 2 पहले वालों से भी नखिद्ध हैं। का मतलब हुआ हम सिर्फ क्वांटिटेटिव बात कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव मीन्स 4 लोग वो काम करते कि नहीं करते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू सी दैट एस्पेक्ट। इसका मतलब हुआ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बिल्कुल ऐसी है। अगर आपने नेचर की तरफ सोचा, नेचर मतलब क्या वो करेगा, क्या वो काम नहीं करेगा, अगर आपने ऐसा सोचा का मतलब हुआ कि यू आर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन नेचर, वो नहीं लेना है। अभी आपने सिर्फ क्या लेना है? नंबर ऑफ मोल्स, मतलब वो 4 लोग हैं, इसके ऊपर इसके ज्यादा कुछ नहीं है। 4 लोग हैं तो हम 4 की बात कर रहे हैं। अब देखें ये यहां अप्लाई कैसे होगा। सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछा गया, क्या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? जिसके लिए हमने जो फॉर्मूला लिखा उसको लिखा और वहां से हमने प्रूव करना है यस और नो। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में हमने लिखा
P naught minus Ps divided by P naught. This is relative lowering. Yes or no? P naught minus Ps upon P naught is XB. And XB is equal to NB upon NA plus NB. Yes or no? हमने कहा क्या ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? हमने इसका आंसर दिया, हमने कहा यस. More the number of non-volatile solute moles means NB. जितना ज्यादा NB होगा उतना ज्यादा XB होगा. यस और नो? और जितना ज्यादा XB होगा PS उतना अभी आपने लिखा, कैसी यादाश्त है ये, that PS and XB is inversely related. Yes or no? जितने ज्यादा XB के मोल होंगे उतना PS कम होगा, और जितना PS कम होगा P naught माइनस PS उतना ज्यादा होगा. That is, it depends upon number of moles. Because it depends upon number of moles, as it depend upon number of moles, of solute, so RLVP, relative lowering in vapor pressure, is a colligative property, as it depends upon the number of moles of the solute. So RLVP, so RLVP is colligative property. Yes or no? इसका मतलब हुआ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड कर रही है. नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो NB बढ़ेगा और NB बढ़ेगा तो XB भी बढ़ेगा, और XB बढ़ेगा तो PS घटेगा, और PS घटेगा तो RLVP बढ़ेगा. अब भाई कि इसके एप्लीकेशन क्या है वो मैंने आपको बता दी पहले, कि आप मोलर मास ऑफ सल्यूट निकाल सकते हो. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वन, बॉइलिंग पॉइंट सुने आप, उसके आगे क्या लिखा हुआ है उसको ना सुने. इसको समझने के लिए आपको ढंग से एक बात को समझना होगा, और वो बात है ये, जरा ध्यान से देखिए सामने बोर्ड, और वहां जो ये टेबल बनाया गया है, ये टेबल आपके मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा. कोई नेट पे नहीं मिलने वाला. सामने ध्यान दें, हम सबके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर है विद्यापीठ का, नहीं तो हम सबके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर है एटमॉस्फेयर का. हमारे को अगर कोई उड़ने से रोक रहा है तो एटमॉस्फेयर है. अगर सबसे ज्यादा प्रेशर एटमॉस्फेयर का है तो उसके बाद प्रेशर किसका है, सॉल्वेंट का है या सॉल्यूशन का? हाईएस्ट वेपर प्रेशर, हाईएस्ट प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है तो हम कई बार पढ़ चुके इस चैप्टर के दौरान कि उसके बाद का प्रेशर सॉल्वेंट का प्रेशर है, और उस सॉल्वेंट के बाद का प्रेशर सॉल्यूशन का प्रेशर है. इसका मतलब साफ हो गया कि
हर कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम करना चाहता है ताकि वो वेपराइज हो सके। हमने कहा कि भाई सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्यों कम है? जब सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होंगे, दोनों होंगे तो फिर आपने दोनों के होने से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के होने से, प्योर सॉल्वेंट का जो इंडिविजुअल वेपर प्रेशर है वो तब भी हाई ही रहेगा अगर वो दोनों कंपोनेंट वॉलेटाइल हैं तब भी, और अगर एक नॉन वॉलेटाइल है तब भी। का मतलब क्या हुआ? आपने उसका 1 मोलल सॉल्यूशन लिया, जितना आप सॉल्यूशन, अब आप कह रहे हो कि 1 मोलल क्यों लिया, 1 मोलर क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहां टेम्परेचर वेरिएशन दे रहे हो, आप बॉइलिंग पढ़ रहे हो, फ्रीजिंग पढ़ रहे हो, आपको कोई ऐसा पैरामीटर कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन का लेना है जो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट हो। इसलिए इस सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन मोलर नहीं है, वो कंसंट्रेशन नॉर्मल नहीं है, वो कंसंट्रेशन हमेशा मोलर होगी। अब आप जरा ध्यान से सुनो, अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर हुई का मतलब हुआ 1 मोल 1000 ग्राम के अंदर है, ठीक हो गया। और अगर उसकी कंसंट्रेशन 2 मोलल हुई तो 2 मोल पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हुआ। इस तरह से, जिस तरह से मैं मोलैलिटी को बढ़ाता रहूंगा कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस घटती रहेगी, इंटरैक्शन बढ़ती रहेगी, वेपर प्रेशर घटता रहेगा, और इसलिए बॉइलिंग पॉइंट सुन लिया। इसका मतलब सामने देखो, मैंने उसका 1 मोलल सॉल्यूशन बनाया तो वेपर प्रेशर इधर था, मैंने उसका सॉल्यूशन 2 मोलल बना दिया, इसका मतलब इंटरैक्शन बढ़ गई, वेपर प्रेशर। मैंने उसका 3 मोलल सॉल्यूशन बना दिया, वेपर प्रेशर कम हो गया। इसका मतलब हुआ जितनी मैं मोलैलिटी बढ़ा रहा हूं वेपर प्रेशर घटता जा रहा है। इसका मतलब मुझे साफ लिखना चाहिए कि भाई जो वेपर प्रेशर है वो और मोलैलिटी जो है वो एक दूसरे के इनवर्स रिलेशनशिप में है। यस और नो? So we should say that vapor pressure and molality is inversely proportional. और मुझे ये कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है, अगर आपको भी ना हो तो आप भी बोल सकते हैं कि जितनी मोलैलिटी होगी उतनी इंटरैक्शन होगी, उतना वेपर प्रेशर कम होगा, इसलिए उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? It means with increase in concentration the boiling point increases. सुन लिया? अब आप ध्यान दो +1 की बात का। हमने +1 में पढ़ा कि जब एक बार बॉइलिंग हो जाती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। हमने बात की थी +1 में कि चंडीगढ़ में बॉइलिंग लेट होगी, शिमला में बॉइलिंग जल्दी होगी, क्योंकि यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, चंडीगढ़ में ज्यादा है, और अमित अंकल के घर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ज्यादा है। मतलब हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एट सी लेवल। राइट? इट मींस अगर हमने सेम कंटेनर लिया शिमला में और बॉम्बे में, सेम बिल्कुल एक ही तरह का कंटेनर है, उतना ही वाटर डाल दिया, तो हम क्या देखते हैं कि वो शिमला में जल्दी बॉयल करेगा, क्योंकि उन वेपर्स को ओवरकम करने के लिए प्रेशर कम है। पर अगर आप जैसे जैसे हाइट की तरफ जा रहे हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो वेपर्स ने जिसको ओवरकम करना है वो घट रहा है। इसका मतलब हुआ जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाते रहते हैं
बॉइलिंग आसान होती रहती है। और हमने +1 में पढ़ा, एक अच्छी बात बता रहा हूं, डिलेड बॉइलिंग इज फास्टर कुकिंग। हमने प्रेशर कुकर का प्रिंसिपल पढ़ा कि प्रेशर कुकर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वो जो वेट है ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वो वेट ना हो तो वो चीज जिस प्रेशर पे बॉयल करनी है बॉयल कर जाएगी। वो वेट उस चीज को उस प्रेशर पर नहीं बॉयल करने देता, बल्कि उस टेम्परेचर पर नहीं बॉयल करता, बल्कि हायर टेम्परेचर पर बॉइलिंग करता है। इसका मतलब हुआ, अगर आपको यह कहा जाता है कि आप गैस सिम करें, तो समझ लीजिए कि आपके घर वाले साइंटिफिकली साउंड हैं और वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई बॉइलिंग डिले करो ताकि कुकिंग फास्ट हो जाए। ये नहीं कि क्रिश आज घर में अकेला था, बोले आज तो पुलाव ही बनाऊंगा, तीनों गैस के चूल्हे पतीले के नीचे डाल दिए और फटाफट से कच्चा पुलाव खा गया। जब इसने 3 गैस के चूल्हे एक पतीले के नीचे डाले तो क्या हुआ, बॉइलिंग जल्दी होगी, इसलिए कुकिंग नहीं हुई। हमने देखा कि मैं इस टाइम प्रेशर कुकर की बात नहीं कर रहा हूं, हमने देखा कि आप लोगों में से कुछ एक की मम्मा जिस दिन राजमा बना रहे हैं तो उनको भिगो देते हैं, कुछ एक लोग उसको बॉयल भी कर देते हैं, फिर ऐसे ही रहने देते हैं, शाम को बना लेंगे। कुछ एक के मम्मा, अब हमारे पास यहाँ 3 तरह की मम्माज हैं, देखते हैं साइंटिफिकली साउंड कौन सी है। एक मम्मा है, उसने जो है सीधे राजमा को पानी में डाला और गैस पर बॉयल करने के लिए रख दिया। दूसरी मम्मा ने उस राजमा में नमक भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया और बॉइलिंग पे रख दिया। हमने पूछा आपने ऐसा क्यों किया, रीजन दिया गया कि फिर नमक ना अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा। तीसरी मम्मा ने, जो पहली दोनों ने किया वो तो किया ही किया, साथ में बोले हल्दी भी बढ़िया मिक्सअप हो जाएगी, हल्दी भी डाल दी। इन तीनों सोल्यूशन में से सबसे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कौन सा है, तीसरा है। इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हुई, इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर कम हुआ, इसका मतलब उसकी बॉइलिंग सबसे लेट हुई। ये मम्मा साइंटिफिकली साउंड थी, क्योंकि जिसने नमक नहीं डाला ना हल्दी डाली, वो सॉल्वेंट को बॉयल कर रही है, और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, इसका मतलब उनकी बॉइलिंग। सो डिलेड बॉइलिंग इज फास्टर कुकिंग। Am I right? It means साफ हो गया कि एक क्रिश जो है वो चाय बना रहा है। क्रिश चाय बना रहा है, चाय बनाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि आपने जो है केटल में पानी डाल दिया और आप उसको बॉयल करेंगे, बाद में उसमें चीनी और चाय पत्ती डालेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि उसी में ही पहले ही चीनी भी और चाय पत्ती भी डाल दी और चाय बन गई। इनमें से कौन सही है? पहले वाला सही है, क्योंकि चाय इज बॉइलिंग नॉट कुकिंग। का मतलब हुआ किसका पानी पहले बॉयल किया? सुना? मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक बंदा था जिसने क्वेश्चन पूछा था, अब तो आईएएस ऑफिसर है, उसने कहा था कि चाय तो शिमला में ही जल्दी बनेगी पर खाना चंडीगढ़ में जल्दी बनेगा, क्योंकि चाय इज नॉट कुकिंग, चाय इज बॉइलिंग। सो बॉइलिंग तो यहाँ, इसका मतलब वो बच्चा, वो वेटर जो पहले पानी को बॉयल कर रहा है फिर चीनी और चाय पत्ती डाल रहा है, वो ज़्यादा वाइज है, क्योंकि सॉल्वेंट की बॉइलिंग जल्दी होगी। समझ में आ गई बात? इसका मतलब साफ हो गया कि सॉल्यूशन को बॉयल करना मुश्किल है और सॉल्वेंट को बॉयल करना आसान है। और हाँ, आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? सॉल्यूशन। इसका मतलब जो भी कुछ बोलना है सॉल्यूशन के विद रिस्पेक्ट बोलना है। समझ में आए बात? तो बताओ, सॉल्यूशन के विद रिस्पेक्ट बॉइलिंग बढ़ा या घटा? फिर नॉन वोलेटाइल की बात हो रही हो, तो कहानियां खत्म हो गई। अब हम बात कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। आप ध्यान दो कि ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है।
अगर आपने इसको वेपराइज या बॉयल करना है, आपको इतना टेम्परेचर देना होगा कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डोमिनेट कर जाए। अरे भाई साहब, अगर आप सोल्यूशन ले रहे हो ना, आपको इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डोमिनेट करेगा। इसका मतलब साफ हो गया कि सोल्यूशन को बॉयल करना मुश्किल होता है। सोल्यूशन विल बॉयल एट हायर टेम्परेचर, दैट्स व्हाई इट इज बॉइलिंग पॉइंट। बट अब हम उसमें लिख सकते हैं कि ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, कि ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसलिए है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या सॉल्वेंट से ज्यादा है। जरा ध्यान दें सामने, मैं क्या ये कह सकता हूं कि TBS कितना है? जितनी मोलैलिटी है, क्योंकि TBS, क्योंकि जितनी मोलैलिटी ज्यादा है, उतना वेपर प्रेशर कम है, उतना वेपर प्रेशर कम है। अरे भाई, समझ रहे हो? इसका मतलब हमें साफ बोल देना चाहिए, इसका मतलब हमें साफ बोल देना चाहिए कि P0 तो फिक्स है। अबे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तो फिक्स है, ये तो सॉल्यूशन का है जो कम या ज्यादा हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन आपने कितनी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाया है। इसका मतलब मुझे कहना चाहिए कि TBS माइनस TB0, should I say? देखिए, TB0 कांस्टेंट है, जितनी मोलैलिटी बढ़ाओगे उतना TBS बढ़ेगा। इट मीन्स TBS कौन है? Boiling point of solution is greater than that of solvent, so the name is elevation in boiling point. Are you getting or not? It means from here I should say that TBS minus TB0 is equal to constant K into molality, and this constant is called elevation in boiling point constant. This constant is called elevation in boiling point constant, also called ebullioscopic constant. Also called ebullioscopic constant, and this ebullioscopic constant Kb is equal to, the way this is being calculated is RT naught square. RT naught square upon 1000 into latent heat of vaporization. We did this in thermodynamics +1. RT naught square. What is R? Is not Ramesh, this is gas constant. And T naught is, क्या कर रहे हो? Boiling temperature of solvent. This LV is latent heat of vaporization, and we should always remember latent heat of vaporization is enthalpy of vaporization per mole. Enthalpy of vaporization per mole. तो ये M1 कौन है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक हो गया जी?
इसका मतलब अगर इस फॉर्मूले को हम लिखें तो हमारे पास आ जाएगा आर टी नॉट स्क्वायर into m1 divided by 1000 into delta H of vaporization. Yes or no? तो या तो आपको अब जरा ध्यान से सुनो यहां कि आर टी नॉट सॉल्वेंट कौन है पता नहीं। अगर सॉल्वेंट CCl4 हुआ तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, अगर वो वाटर हुआ तो अलग होगा, अगर बेंजीन हुआ तो अलग होगा। इसलिए आपकी एनसीईआरटी में सब सॉल्वेंट में Kb की वैल्यूज अलग अलग दी हुई है। अरे भाई ठीक हो गया। तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमने कर दिया कि भाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या करना है हमने कर दिया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है हमने कर दिया। और अब वो पूछता है कि ये बताओ कि इसका काम है क्या, कि बताओ इसका क्या काम है। हम बोलने वाले हैं कि भाई अगर किसी ने मोलर मास ऑफ सल्यूट निकालना हो तो वो यहां से निकाल सकता है, इसका यही काम है, इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की यही एप्लीकेशन है। पर उसने हमसे एक और चीज पूछी कि बताओ कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हमने कहा मोर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट, मोर इज द मोलैलिटी, मोर द मोलैलिटी लेस इज, more the molality less is vapor pressure, and less the vapor pressure more is TBS. It means TBS increases with increase in moles. That's how this is colligative property. क्योंकि colligative property कौन है, the property which will depend upon the number of moles. उसने कहा कि इसका फायदा क्या है, हमने कहा कि इसका फायदा यहां देखा हमें कि अगर आपके पास बाकी पैरामीटर्स दिए हुए हैं तो आप इस फॉर्मूले से किस फॉर्मूले से, TBS माइनस TB नॉट इज व्हाट, डेल्टा TB, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB, KB इंटू मोलैलिटी क्या होता है भाई, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, यस और नो, डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, यही होती है मोलैलिटी, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। पर हमने कहा देखिए भाई एक बात ध्यान रखें, इसको किसी ऐसे का मोलर मास निकालने के लिए यूज ना करें जो टेम्परेचर सेंसिटिव होता हो, क्योंकि टेम्परेचर सेंसिटिव चीजें तो टेम्परेचर वेरिएशन से खत्म हो जाती हैं। It means you can find the molar mass of solute here, but that solute cannot be amino acid. That solute cannot be protein. That solute cannot be polymer because they get denatured with the temperature. खत्म हो जाते हो टेम्परेचर के साथ। आपने जो किया इसको आप यहां देखें, हमारे पास दोनों बातें थी, सॉल्वेंट भी था सॉल्यूशन भी था। बताओ किसका वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ, सॉल्वेंट का। आप यहां से यहां जा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, एक वक्त आया सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डोमिनेट कर गया और सॉल्वेंट वेपराइज हो गया। अभी भी सॉल्यूशन वही है, इसलिए आपने जब और वेपर प्रेशर बढ़ाया तो अब सॉल्यूशन
का वेपर प्रेशर एक्सीड कर गया और सोल्यूशन अब बॉयल करना शुरू कर दिया. सो दिस इज अ TBS एंड दिस इज अ TB नॉट, एंड द डिफरेंस बिटवीन TBS एंड TB नॉट विल बी डेल्टा TB. और ये डिफरेंस डिपेंड करेगा कि सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है. सोल्यूशन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना नीचे आएगा. जितना सोल्यूशन का वेपर प्रेशर नीचे आएगा उसको बॉयल करने के लिए आपको उतना ही टेम्परेचर देना पड़ेगा. Am I right? It means I should say this delta TB is directly proportional to molality. Molality depends upon mole, so delta TB depends upon mole, and hence elevation in boiling point is a colligative property. Is it okay? अब आप थोड़ा दया यहां सोचें. आप पहली बात के बारे में ना सोचें. अब वो क्या है हमें नहीं पता, वो क्या है हमें नहीं पता, हमें अब पता लगेगा. हमने क्या किया, हमने देखा कि हमें किसी को फ्रीज करना है. अटेंटिव रहें, सामने ध्यान दें. What is freezing temperature? In +1 we did a very beautiful definition. When molecular motion ceases, it freezes. No? When the molecular motion ceases, it freezes. When the molecular motion ceases is when the component, they're having very strong force of interaction and they don't want to move. And that's what we used to say is अब ये solidify हो गया. It means जहां बॉइलिंग करने के लिए आप वेपर प्रेशर बढ़ा रहे थे ताकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम करे और वेपराइजेशन हो या बॉइलिंग हो, आप कह रहे हो कि फ्रीजिंग के लिए तो भाई हम टेम्परेचर डाउन करेंगे ताकि इंटरेक्शन बढ़े. इसका मतलब इस ग्राफ के हिसाब से अगर फ्रीजिंग की बात हो रही है मतलब हम नीचे जा रहे हैं, और नीचे पहले वो पहुंचेगा जो नीचे होगा. और नीचे कौन होगा? जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें इंटरेक्शन ज्यादा होगी और उसका वेपर प्रेशर कम होगा. इसलिए उसको फ्रीज करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर डाउन करने की जरूरत नहीं है. आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? सोल्यूशन के विद रिस्पेक्ट कहो कि सोल्यूशन को फ्रीज करना आसान है कि सॉल्वेंट को आसान है. इसका मतलब हुआ सोल्यूशन का फ्रीजिंग टेम्परेचर कम है. आपने P0 को फ्रीज करना है, आपको यहां से यहां टेम्परेचर डाउन करना होगा. आपने 3 मोलल को फ्रीज करना है, इतना सा टेम्परेचर डाउन करना होगा. का मतलब छोटे भाई बहन ने कहा भैया जल्दी से आइस जमा दो. ओके, यहां से इसलिए रहे हैं कि उसकी बात मानेगा कौन, उसकी बात को अहमियत कौन देता है. का मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से सुनो. अब हमने क्या किया कि 3 आइस क्यूब में पहले वाले में पानी डाल दिया, ठीक है. दूसरे वाले में हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया, ठीक है. और तीसरे वाले ने हमने नमक थोड़ा ज्यादा डाल दिया. आपने कहा when molecular motion ceases, it freezes. When you are increasing concentration, you are increasing interaction. You are decreasing. It means उस बच्चे को उस क्यूब में आइस सबसे पहले मिलेगी जिसमें आपने ज्यादा नमक डाला था. इसी की तरफ आ रहे थे हम. हमने देखा कि
दिसंबर में शिमला में तो बर्फ नहीं है, पर आइस स्केटिंग रिंक में लोग पहुंचे हुए हैं। हमने देखा कि अब तो हम नहीं कहेंगे डेवलप्ड कंट्रीज, पर फॉरेन कंट्रीज में वही NaCl, यूरोपियन कंट्रीज जहां 12 महीने बर्फ रहती है, रोड एक दिन भी बंद नहीं होता है, चाहे वो टेम्परेचर -30 क्यों ना चला जाए। इसका मतलब मशीन्स होती हैं एंड दे सॉल्टिंग द सरफेस, दे आर सॉल्टिंग द सरफेस। मशीन जा रही है आगे आगे और सॉल्ट छोड़ती हुई जा रही है। अब आप ये देखो कि यहां तो वो NaCl आइस को मेल्ट करने के लिए यूज हो रहा है, और वहां पूछो आप क्यूरेटर से, भाई कैसे, बोले NaCl डालते हैं। अब आप सोचो, वही NaCl एक साइड फ्रीजिंग के लिए यूज हो रहा है, तो एक साइड मेल्टिंग के लिए यूज हो रहा है। फर्क तो रहता होगा, फर्क है अमाउंट का। आपने देखा होगा जब स्नो से रोड क्लियर किया जाता है तो वो व्हीकल आगे मूव कर रही होती है और सॉल्ट डाल रही होती है, और जितने जितने में सॉल्ट गया रोड बिल्कुल साफ। पर आप आइस स्केटिंग रिंक में पूछें कि आप क्या करते हैं, बोले नमक डालते हैं। बोले नमक से तो यार मेल्टिंग होनी चाहिए, आपकी फ्रीजिंग कैसे हो गई। बोलते शिमला में तो बर्फ नहीं है, हम क्या करते हैं, शाम को उसके ऊपर सॉल्ट की एक लेयर लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, रात को ओस पड़ी, बर्फ तो नहीं पड़ी। ओस पड़ी, दैट बिकेम सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। नमक ज्यादा है, वेयरएज गाड़ी आगे जा रही है, सॉल्ट छोड़ती जा रही है। दैट इज सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मतलब एक जगह उसका अमाउंट इस तरह से रोल प्ले कर रहा है, बोली दूं कि अगर ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है तो उल्टे सॉल्यूशन से एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगी। इसलिए अगर उसका अमाउंट डिफरेंट है, अगर एक सॉल्यूशन सॉलिड इन लिक्विड है तो दूसरा लिक्विड इन सॉलिड है, का मतलब हुआ इट्स नॉट ओनली इट्स इन योर सिलेबस दैट देयर इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बट not in your syllabus that there is elevation and freezing point. But this can be, अगर वही solution उल्टा बना दिया जाए तो सब कुछ उल्टा हो गया। इसका मतलब it is the amount of NaCl which matter whether you want to depress the freezing point or you want to elevate the freezing point. Delta TF, या सीधा कहूं that TFS is more the molality, less is TFS. अरे जितना मोलल ज्यादा होगा भाई, यस और नो। इसका मतलब हुआ मोललिटी जितनी ज्यादा है TFS उतना कम होगा, यस और नो। और मोललिटी जितनी ज्यादा है वेपर प्रेशर उतना कम होगा, यस और नो। इसका मतलब साफ हो गया कि यहां अगर हम देखें TF नॉट तो कांस्टेंट है, क्या TF नॉट TFS से बड़ा है या छोटा है? TF नॉट बड़ा है, सो TF नॉट इज ग्रेटर देन TFS। कितना ग्रेटर? डिपेंड अपॉन मोललिटी। जितनी मोललिटी ज्यादा है उतना TFS कम होगा।
सो सॉल्यूशन चैप्टर है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है कि ज्यादा है? So it means we should say depression in freezing point. It means we should say TF naught minus TFS is directly proportional to M, or I should say delta TF is KF into M. Yes or no? When delta TF is TF naught minus TFS is directly proportional to M, or I should say delta TF is equal to KF into M, and this KF is called cryoscopic constant. और हमने अभी बात कर ली कि ये जो है इसको क्या बोलना चाहिए? डिप्रेशन इन freezing point. Yes or no? So this KF is called cryoscopic constant. Cryoscopic constant. और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट अगर ये है तो इस KF की वैल्यू भी वैसे निकलती है जैसे आपने KB की वैल्यू निकाली थी, सिर्फ मतलब ये है कि यहाँ RT नॉट स्क्वायर का मतलब होगा फ्रीजिंग पॉइंट 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन नहीं होगा बल्कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा. सो वी शुड से RT नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 into delta H of fusion upon molar mass of that solvent whosoever is being taken. Is it okay now? So this is again the faida over here will be to find out the molar mass of solute, which will be delta TF equal to KF into weight in gram upon, yes, upon molar mass of solute M2 into 1000 divided by mass of solvent, divided by mass of solvent. Yes or no? So that's all for today. Thank you very much. Have a nice time.